सर जैसा कि आपने इधर आके चार्ज लिया था, जब से अब तक यहाँ पर क्या क्या काम हुए हैं सर? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತಿಗೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಂಬಳ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ABRK ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನೀವೀಗ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನೋಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಆ ಡ್ರಗ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಡ್ರಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 85% to 90% ಎಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನ ಫ್ರಮ್ 15-20 ಡೇಸಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ನೀಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್, ನಮ್ಮ ADC ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿವಾನಂದ್ ಸರ್, ಅವರು ನಾವಿಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. सर जैसा कि इधर सैलरी के लिए बहुत इश्यूज चल रहे थे, डी ग्रुप का भी सैलरी नहीं हुआ था, तो उन लोग का ये कहना है कि हमारे को सर सैलरी नहीं दे रहे थे, इसलिए हम क्लीनिंग नहीं कर रहे थे। और वो और एक बात भी सामने आई है कि सिर्फ 60 साल जो है उनको निकालो, उसके बाद हम सैलरी इशू करेंगे बोल के ये कहना है सर उन लोग का। ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜನವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ಈ ತಿಂಗಳದು ಸಂಬಳ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇನ್ನೊಂದು 60 ವಯಸ್ಸು ದಾಟದವರಿಗೆ, ಹೌದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 60 ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 60 ವರ್ಷ ದಾಟದವರು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. सर डी ग्रुप को यहाँ पर जैसा कि ज्वाइन कराए थे, डी ग्रुप जो जो इधर काम करते हैं उनको सर ऑर्डर कॉपी नहीं दी गई थी, तो वो लोग भी इधर काम कर रहे हैं, उनकी भी सैलरी नहीं हुई थी कहते हैं सर। इस पे आपका क्या कहना है सर? ಅಭಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಳ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ESI ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ಫೋನ್ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ZP-ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು 50,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಂಬಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್. ಯಾರ್ದು ಎಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 7th 8th ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ರದ್ದು ಸಂಬಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 800 ಜನನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ದಾರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರ್ದಾರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 264 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳದ್ದು ನಾವು ಸಂಬಳ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. वैसे नहीं सर, देखो बड़े भाई, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उनका हो गया. अभी जिनका जिनका नहीं हुआ वो हमारे पेरोल में नहीं है, उनको ऑर्डर नहीं है, वो सैंक्शन से ज्यादा है, वो सब क्या है सरकार को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा है बोल के. तो अभी जो ड्यूटी कर रहे हैं सर इधर, डी ग्रुप होने दो या कोई डॉक्टर्स होने दो या नर्सिंग स्टाफ होने दो, वो जो ऑर्डर कॉपी उनके पास नहीं है सर, उनको ड्यूटी पे रखा गया है, उन्होंने पहले से भी इधर ड्यूटी करते हैं। उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं फाइनेंस ऑफिसर हूँ. जो मेरे को डायरेक्टर से ऑफिस में सैंक्शन स्ट्रेंथ इतना है, ये लोग सैंक्शन स्ट्रेंथ में है बोल के जो नाम आया है उनका सैलरी अप टू डेट हो चुका है. डॉक्टर्स का 45 का भी होने का बाकी था सर, क्या उनका भी हो गया है? डॉक्टर्स का देखिए, उनका वॉक इन नहीं है, रोस्टर नहीं है. उनका जो सैलरी का इशू है वो अभी हम सरकार को रिपोर्ट करना है, वो भी हमारा निर्देशक साहब करना है रिपोर्ट. वो अभी तो हम उसके बारे में नहीं सोच रहे. अभी हम वॉक इन करने का सोच रहे. जनवरी फरवरी में हम एक 45 डॉक्टर्स के लिए वॉक इन का पूरा प्लान रेडी है. ओके, और शीघ्र में इम्प्लीमेंट करेंगे. सर और एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आप जब से इधर चार्ज लिए हैं, पब्लिक का कहना है कि क्लीनेस मेंटेन हो रहा है और गाड़ी को पार्किंग जो करना है वो भी अच्छा से हो रहा है, तो पब्लिक यही मैसेज देना चाह रही थी कि आपको कि FA सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है सर? जो भी है, हमारे इंचार्ज मिनिस्टर साहब का मुझे इतना ऑर्डर था कि आप फाइनेंस वाले हो, अगर आप टाइट हो गए, अगर आप सीधा काम कर रहे तो पूरा हॉस्पिटल सुधरेगा. आप उधर जाइए और जाके पूरा क्लीन अप कर दीजिए. जो भी इलीगल है, जो भी क्या क्या इलीगल चल रहा है उसका पेमेंट मत करिए. जो भी लीगल है उनको शीघ्र में पेमेंट कर दीजिए बोल के. और ये जो पार्किंग का है, कैजुअलिटी के सामने अगर गाड़ियां रुकेंगे तो जो एम्बुलेंस आएगा वो एम्बुलेंस अंदर आने के लिए 5 मिनट्स हो जाएगा. तो इसलिए हमने वो पार्किंग सिस्टम सब चेंज कर चुके हैं. और जो हॉस्पिटल के बाहर है, वो गुटखा दुकान, वो उन सब लोगों को हमने बोल दिया है कि आप हॉस्पिटल के 100 मीटर के अंदर नहीं रहना चाहिए, आप बाहर जाइए बोल के.
तो ऐसा अभी अभी देखिए, जब हम उनको ये बात हमने उनको बोला है तो उन्होंने भी मान लिया ये बात, मान के अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। शॉर्टली सीसीटीवी कैमरास आ जाएंगे और क्या है, फोकस लाइट्स आने वाले हैं। और कैजुअलिटी में अभी आप देखिए कॉर्ड्स थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हमने जब इंचार्ज मिनिस्टर साहब को बोला तो उन्होंने बोला है कि ओके आप केकेआरडी फंड में प्रपोज करिए बोल के। अब ओबीजी का क्या है, जो लैब क्या ऑपरेशन थिएटर है उसको भी 50 लाख सैंक्शन हुआ है, और फॉरेंसिक मेडिसिन का जो प्लेस है उसको एक 50 लाख केकेआरडी से सैंक्शन हुआ है। तो ऐसा सब कुछ हम जब मिनिस्टर साहब को जाके बोल रहे तो उन्होंने सब कुछ सैंक्शन करके हमारे को प्रोत्साहन कर रहे हैं। और लास्ट स्टार्टिंग में नए नए आते हैं, वो स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उसके बाद क्या आप कंटिन्यू ऐसे ही मेंटेन रखेंगे या फिर ऐसा बीच में फिर से पुरानी हालत हो जाएगी सर? देखो बड़े भाई, हम तो अभी बहुत छोटे हैं एज में जी अगर हम कुछ गलती करेंगे तो हमारे ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चालू होगा। जी तो मेरा क्या है, फाइनेंस में स्ट्रिक्ट रखूंगा। जी उसके बाद जो है हमारे एमएस सर है, उन्होंने हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी डॉक्टर्स है वो सब लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं। नर्सिंग इंचार्जेस का मैंने एक ग्रुप बनाया है, स्कैवेंजर्स का एक ग्रुप है, और बायोमेडिकल वेस्ट का एक ग्रुप है। ऐसा सब व्हाट्सएप ग्रुप बना के रियल टाइम पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर लास्ट ये जो सुपर स्पेशलिस्ट तो नहीं बोल सकते सर इसको, हॉस्पिटल तो अच्छा है बट यहाँ से केसेस बहुत बाहर जा रहे हैं, रेफर बहुत हो रहे हैं। क्या आने वाले दिन में इधर वो डॉक्टर रहेंगे जो इधर केसेस हैंडल नहीं हो रहे सर? लास्ट 1 मंथ में जो भी हमारे पास सहूलत है वो सहूलत के मुताबिक कोई भी पेशेंट रेफर नहीं हो चुका है। इतना मैं कहूँगा, हमारे एमएस सर भी इधर ही है, हमने एक पेशेंट भी रेफर नहीं किया है।